Some people there in the waiting. Yes. First of all, you read the sentence first. Alas, I have failed. The very word alas means somebody is sorrowful, somebody is sad. Right? She exclaimed with sorrow, ma'am. Exclaimed with sorrow, sorrowfully. Yes, ma'am. On the flip of that, we have you sadly. Yeah. And Vineet said to Nitin, go away. What will be the right answer? Vineet told Nitin that to go. Ordered, yes. He said to me, where is Neha? He told, he asked me, he inquired. He said to me, I don't believe you. He retorted, मतलब कि वो आपको बता रहा है, assertively कुछ बता रहा है कि I don't believe you. He resorted that he doesn't believe me. Sorry, didn't. I don't believe you. First, you have to understand the meaning of the sentence. And most importantly, you have to understand what feeling it is conveying. Number 5. On the card. मैम 4 का बी थोड़ा रिपीट कीजिए ना. Yes? 4 का बी. Yes, 4 का भी already we discussed. Nitin said to Vineet said to Nitin, go away. Somebody told someone to go away. What is happening? Yeah. Ordered, commanded. Yeah. What is the meaning of the idiom on the cards? Cards पे on the card मतलब कार्ड के ऊपर. मतलब कि एजेंडा में क्या है, क्या करना है, what is on the cards? Your examination is on the cards. अभी क्या करना है वही on the cards. Yeah, something which is going to happen on priority. सबसे पहले क्या करना है, अभी क्या है, what is on the cards? Your deep learning. Your workshop on deep learning is on the cards. मतलब वो agenda में, it is in your agenda. Make a sentence on the cards. Not on the way, on the cards. On the way क्या, वो कोई इंसान है कि चल रहा है. Okay, I'm coming on way, I'm on way. Yeah? Is on the cards. मतलब ये होना है, ये agenda में है. Something which is on your agenda. A celebration is on the cards. मतलब एक celebration होने वाला है. Exam also is on the cards. Exams. Okay. So on the card, something which is going to happen, which is important. Bone of contention. मतलब क्या है? You will have to write in English, no? Yes, what? Something which people do not agree. Like bone of contention. झगड़े का कारण. Kashmir is the bone of contention. झगड़े का कारण. Alliance share. Sorry, the lion's share. Major part. He got the lion's share of the property. मतलब
थोड़ा सा हिस्सा नहीं, ज्यादा मेजर हिस्सा उसके प्रॉपर्टी का चला गया. He got the lion's share of the property. It means he got the lion's share of the cake. He got the lion's share of the punishment. हाँ, तो केक भी तो शायद तुमको ज्यादा मिलेगा, तो तुम पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगा. The lion's share means something which is the major part of anything. To die in harness. To die while working, yes. To die when you're working, when on duty. So when somebody dies in harness, somebody dies while working. Right? No. Die in harness का मतलब एक ही होता है. Somebody who is working ड्यूटी पे काम करते करते किसी का मौत अगर हो जाती है किसी की, तो for that the person dies in harness. Harness का मतलब क्या होता है? Harness किसको लगाया जाता है? Harness. Frame. The next is once in a blue moon. Scroll. Okay. Once in a blue moon. Very rare. Rarely. Blue moon कब दिखता है? बहुत कम दिखता है. Once in, I think, a long time. Once in a long time. So once in a blue moon means some rarely. जो बहुत कम. I go to the movies once in a blue moon. मतलब हम बहुत कम जाते हैं, बहुत कम. एक साल में एक आध बार चले जाते हैं. Okay, these questions are very easy. One word substitute. Shallow body of water separated by barrier island. What is it? Lagoon. Very good. Shallow body. What do you mean by shallow body of water? जहाँ पानी कम होता है. Okay. B. Person who insists on something. Stickler. क्या? Somebody किसी बात के लिए insist करता ही रहता है, और जब तक वो complete नहीं होता है वो आगे बढ़ता ही नहीं. Somebody, I don't know, somebody has answered this correctly. Please repeat it for the class. A person who insists on something is a Stickler. Stickler. Yeah. Kindly spell the word with the for the students. Stickler. Very good. A person attached to a profession by love or unpaid manner. Amateur. No. No. Honorary. Honorary. I mean, he does not get paid for it. He is attached to the profession or the organization because he has this compassion for it. Honorary. Honorary. B. Procedure of systematically acquiring information or opinions.
D. Investigation. No. Census. Procedure of systematically acquiring information or opinion. Ma'am, survey. No. Interview. Sometimes they give very simple and they will not know. E. Childless, elderly, unmarried woman. Spinster. 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 A person who does not, a man who doesn't marry is called a bachelor, but a woman who does not marry, childless, she is a spinster. Spinster. Write down. I think I gave you a lot of one-word substitute, and it is all in that. Spinster. Yeah. All right. Anything else you would like to know? I think this is the second semester paper, no? Because one word substitute is all in second semester. But then they have given you in first semester. अच्छा कि आपको already पहले बता दिए थे हम second semester. Any other questions which you have? Any other question? What is nostrum? One word substitute. Nostrum. Factotum. Yes. All this is this will be under one word substitute. So there are a lot of things, technical details which you need to know. Different form of business letter अगर पूछे तो मैं उसमें हम फॉर्मेट के हिसाब से Format के हिसाब से business letter लिखना है. To write a business letter, first we will have to define what is business correspondence. What is letter writing? And then on the correct format, like the block style, you will have to write a letter according to the question given. Block style. Ah, yes, block style. Guess what? Describe different forms of business letters. So you all have done it correctly. Different forms of business letters are block style, modified, and describe the difference. What is the similarity? What are the differences? And they have not given any elaborate your answer with a example. So you only have to describe the three different styles of letter. हाँ. हाँ. All right, question number 7. This is an informative writing style where you have to write about what is the importance of communication.
Like the question is, communication is the life blood of an organization. Without communication, any organization cannot run. In every organization, it cannot survive without communication, whether oral or written. तो कम्युनिकेशन का महत्व क्या है? वो एक ब्लड लाइन है, वो फ्लो करता है जिस तरह से ब्लड लाइन मीन्स द वे ब्लड is circulated in our body through nerves. So in an organization, communication flows through the organization from top to bottom by the means of communication, whether it is oral or whether it is written. Any communication, any business, and every business, without communication, it cannot survive. For example, if you have entered a company, you've joined a company, and you join, you're just sitting. Without any communication, you will not know what to do, how to do. So there has got to be training, there has got to be leadership skills, there has got to be communication, there has got to be interpersonal communication, there has got to be intrapersonal communication. Without communication, the organization cannot exist. नहीं, आपको बताते हैं कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, ये बहुत ही वास्ट है, इसमें बहुत कुछ आप लिख सकते हैं. व्हाट इज कम्युनिकेशन? फर्स्ट डिफाइन कम्युनिकेशन. सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस में कैसे बताएंगे इसको? पहले कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. It can be from one person to one person, it can be one person to the entire group. It can be done in a group, it can be done face to face. So communication is basically of two types: verbal communication and non-verbal. What is verbal? When we are using words. When we are using words in written, in oral, शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है verbal. नॉन वर्बल क्या? नॉन वर्बल जब हम बिना बोले, बिना शब्द यूज किए कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशंस. व्हेन वी स्माइल, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट व्हेन वी आर स्माइलिंग, व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अपने हाव भाव से भी बहुत कुछ कहते हैं. व्हेन वी आर नॉट यूजिंग लैंग्वेज, we are using body language. For example, if I ask you to come here, if I don't say anything, so all these things are non-verbal communication. You have to understand the person will not say anything whether you are using words or not. You are nodding your head. When you're sitting alone, you're looking at the pankha. It means you're bored. You're bored. Daydreaming कर रहे हैं. बार बार आप घड़ी देख रहे हैं. It means आपका कब ये क्लास खत्म हो, कब हम जाएं. आप ये बाद में आएंगे. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत वास्ट है. बिना कुछ बोले, बिना अपने हाव भाव के, सिर्फ अपने कपड़ों से जब कम्युनिकेट करते हैं. कैसे मालूम है कि ये फलाना इंसान डॉक्टर है? by the way he dresses. How do you know he is the lawyer? Black coat. How do you know this girl is going to the party? She has on so much of makeup. And she is wearing nice clothes. How do you know this boy is from Sivij? How do you know ये आदमी fishing करने जा रहा है? By the rods or whatever cord is carrying. How do you know that this person is going to play cricket? He has a cricket kit. So without anything, without verbal communication,
without any hav, any gestures or facial expression, you know that this person is going to play cricket. Somebody is walking with a guitar. You know that this person is a musician. So जब हम when we are not using any word, when we are not using any expression, when we are not using any gestures, we are using object. This is called object communication. जब अपने पहनावे से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सेसरीज जो कैरी कर रहे हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं. सड़क पे एक बंदा जा रहा है, व्हाइट एप्रन पहना हुआ, स्टेथोस्कोप गले में है, इंस्टेंटली यू नो ही इज अ डॉक्टर. वो ये नहीं करेगा आई एम अ डॉक्टर, बट whatever he is wearing, whatever he is carrying, that is communicating that yes, he is a doctor. This in business communication is called object communication. एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो दिस इज ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन. You communicate with your dress. You communicate with something which you're carrying. Any object. It can be a dress, it can be anything. You can communicate by just touching. For example, a firm handshake. If somebody is very sad, somebody has failed in a internal exam. So you can, let us be very positive. So you just go and you try to console him by putting your hand on his shoulders. कोई बात नहीं है, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, मैं हूं ना. तो ये कुछ नहीं कहता, बस जाके उसको थोड़ा संतावना देता है by touching him. आप लिख रहे हो क्या? What is object communication? नहीं तो मेरा एग्जाम जब होगा नेक्स्ट टाइम आपको यही सब देंगे एग्जाम में. जो कोई ये पढ़ाते हैं वो एग्जाम में रहता है. So what is object communication? And you have to elaborate your answer with example. जैसा भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया है. ओके, जब आप टच करके किसी को कम्युनिकेट करते हैं, किसी को गुस्सा भी करते हैं, किसी को मार देते हैं जाकर के, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? आपने कुछ कहा नहीं, बस गए और लगा दिया कस के. When you are touching, when you communicate by touching, whether you are angry or whether you want to show love and emotion, you go, you're very happy and in Rakhi you go home and then you hug your sister or your mother. वो क्या होता है? You say nothing. लेकिन सिर्फ आप इमोशनल हो जाते हैं और बहुत दिन के बाद किसी से मिले हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं. तो बिना कुछ बोले जो आप करते हैं, टच करके बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड हैप्टिक्स. HAPTICS लिखो. HAPTICS. Touch communicating by touching. HAPTIC, haptics. HAPTICS. It means you are communicating by touching. Object is very simple. You communicate with your dress. It is apparent, it is quite obvious that you are a student of Simaj, you are a doctor or you are a lawyer or you are whatever. ये सब टीवी सीरियल में देखते हैं. मैंने टीवी सीरियल में बहुत होता है ना, किसी के हादसा हो गया, कोई चलता हुआ ना, तो देखते हैं कि सब व्हाइट पहन के बैठे रहते हैं. तो जैसे ही वो सीन आता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया भाई, कौन चला गया, कैसे जान जाते हैं? बिकॉज वी सी एवरीबॉडी वेयरिंग व्हाइट. So this is haptics. This is object communication. और एक होता है आप सिर्फ टोन से बात करते हैं. जैसे कोई गिर गया है तो दिख नहीं रहा है, आवाज आती है,
कोई गिरने पर क्या आवाज करता है? हाँ? नहीं, मान लो वो गिर जाता है तो उसको कैसी आवाज निकालता है? क्या बोलता है? मतलब वो करता है लेकिन जोर से, पता चलता है कि वो क्या हुआ, दौड़ के जाते हैं आप देखने के लिए। हाँ, तो ये होता है टोन से आवाज। टोन आपका इमोशन कैरी करता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा है, उसको बोलने नहीं आता, हाव भाव भी करने नहीं आता है, जेस्चर्स भी नहीं आता, पोस्चर्स भी नहीं उसको आ रहा है, लेकिन द चाइल्ड क्राइज, वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? या तो उसको भूख लगी है, या तो कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, right? ये आपका चेहरा देख लिया डर गया हो। तो कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं वोकैलिक्स, VOCALICS। यू कम्युनिकेट विद द टोन ऑफ योर वॉइस। जैसे आप कभी कभी अब कोई कहता है कि पापा तुमसे बहुत नाराज है, तो पापा जब नाराज होते तो कैसे पुकारते हैं? नहीं, तो नाम पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं? उनको चिल्ला करके पुकारते हैं। वो आवाज सुन के तुम पतली गली से निकल भी लेते हो, राइट? कि मामला बहुत संगीन है, बच के निकल जाया जाए। तो you communicate, they communicate with that tone। और तुमसे बहुत मम्मी खुश अगर है, तेरा फेवरेट बना हुआ कुछ अच्छा सा, तो बहुत प्यार से आपको पिलाती है, राइट? तो उनके टोन से आप समझते हैं कि my mother is very lovingly calling me। जरूर कुछ, हाँ, कभी कभी वो फेक करते हैं। सही बात है। तो मैंने आपको 3 चीज टेक्निकली बताया, वोकैलिक्स बताया, टोन कैरी करता है। By the tone you will know that your friend is happy or sad, right? Vocalics, haptics and object communication। अच्छा ठीक है, आप जी निकाले हुए हैं और उसके ऊपर करिए, ऊपर करिए। नीचे और जहाँ पे मैं बता रही हूँ स्टेटस बनाने को क्या? तो कम्युनिकेशन इज अ लाइफलाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे बहुत तरह की चीजें जब अभी मैंने आपको बता दिया, उससे आपको कम से कम बहुत कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है। कैन बी रिटन, कैन बी ऑरल, डिफाइन कर दीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, INTRA, इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है क्या? विदिन, विदिन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कह रहे हैं कि इंट्रा बैच कम्युनिकेशन का हम कंपटीशन करेंगे, BCom, BBA, BCA, ठीक है, तो पहले हम करेंगे इंट्रा बैच का मतलब क्या हुआ? आप ही का पहले करेंगे, और फिर हम करेंगे इंट्रा बैच BCom का। तो BCom का बच्चा, आपके यहाँ से एक सिलेक्शन मिल गया हमको, बेस्ट मिल गया हमको BCom से भी, बेस्ट मिल गया BBA से भी। अब इन तीनों का कराएंगे फाइनलिस्ट का फाइनल्स में। तो इंट्रा क्या हुआ? विद इन। लेकिन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो चीज हम चुपचाप से बैठ के जब हम सोच रहे होते हैं, when we are thinking, when we are analyzing, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं। हम खुद से बात करते हैं कि नहीं? Sometimes we talk to ourselves। जैसे आप एग्जाम देते हैं तब ऐसे ऐसे बहुत वो बनाते हैं, ये करें, अब वो कर। When you are taking for exam, you are talking to yourself। नहीं ये सही नहीं है, वो सही है, काट देते हैं उसको, फिर करते हैं, दूसरा करते हैं। और क्या करते हैं आप? कभी कभी खुद से भी बात करते हैं। क्या करना चाहिए? सोच रहे होते हैं,
आज बर्थडे मेरे फ्रेंड का, क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, छोड़ो चलते ही है, क्लास ही कर लेते हैं। तो ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से बात करते हैं। So when you are talking to yourself, when you are planning, when you are thinking, when you are making some project, when you are studying, तब आप अकेले होते हो. When you are talking to yourself, when you are alone, this is called intrapersonal communication. Why is it important? It will help you to think, it will help you to plan, it will help you to decide. And interpersonal होता है जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं. When you are talking to the people in the group, किसी और से बात कर रहे हैं, one to one बात कर रहे हैं, one to many बात कर रहे हैं. When you are in a group, this is interpersonal communication. So all this is very important in an organization. A person who is leading, उसको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती होगी, कितना प्लान्स, जैसे टीचर को कितना प्लान करना होता है. When we are making questions for you, when we are sitting alone, we are not talking to anyone, but we are planning, we are thinking, we are analyzing, we are judging, we are evaluating. आपकी कॉपी से करेक्ट कर रहे हैं हम लोग. So we are quietly sitting and evaluating. So this is interpersonal. When we are in a group, right now we are doing interpersonal communication. But when you are alone, when you are studying, when you are into self-studies, this is called intrapersonal. So you can include all these things. Communication is a bloodline, lifeline. हाँ. The trouble is that in business communication, the chapter is so vast. Your syllabus is so much, but it is so vast. So questions can come from anywhere. कहीं से भी questions आ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. ठीक है. Communication, barrier of communication, process of communication, कुछ भी आ सकता है, anything like that. बैरियर की पहले आप आइए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? शुरू कैसे होता है प्रोसेस? आप लोग आईटी के स्टूडेंट हैं, ज्यादा जानेंगे. प्रोसेस का जब आपको किसी से बात करनी होती है, सबसे पहले क्या आता है? एक आइडिया आता है. जो आइडिया आता है आपको स्टार्ट्स विद एन आइडिया. उसके बाद आप सोचते हैं किससे बात करना है, क्या बात करना है. फिर आप उस आइडिया को उसी फॉर्मेट में आप एनकोडिंग करके डिकोड करते हैं जिसमें उनको समझ में आए. जो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रहा उसमें आप नहीं करेंगे. सपोजिंग यू डू नॉट नो फ्रेंच, तो आपके लिए क्वेश्चन हमको फ्रेंच में नहीं लिखना है, कि किस चीज में लिखना है? the language which you understand, which is English. So if I am, then an idea comes into my mind. The first is encoding. हम एनकोड करेंगे हमको क्या बात करनी है BCA स्टूडेंट से, और फिर मैं उस क्वेश्चन को सेंड नहीं करेंगे, सोचेंगे कैसे बोलना है. व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है मैसेज, फेस टू फेस मेल करना है, फोन पे बात करनी है, या किसी और के थ्रू बुलवाना है. तो दैट इज आई हैव टू डिसाइड कि हमको कम्युनिकेशन कैसे करना है. तो हम चूज करेंगे चैनल. चैनल क्या होता है? चूज हम कैसे बात करना हमको. तो हम करेंगे नहीं, हम फेस टू फेस बात करेंगे. दिस इज माय चैनल. और फिर हम तुमसे बात कर रहे हैं, तो सडनली नहीं बात होती है, सोच समझ के बात करते हैं. और फिर आप क्या करते हैं? आप उनको सुनते हैं, डिकोड करते हैं. मैम ने ये क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को आप डिकोड करते हैं, फिर आप आंसर करते हैं. ठीक है. एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग,
फीडबैक. दिस इज द प्रोसेस. कैसे हो गया? आइडिया, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक. अब इस प्रोसेस में कहीं पर आता है बैरियर. अगर कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, तो माई कम्युनिकेशन इज 100% अंडरस्टूड. अगर हम कुछ बोल रहे हैं और कोई बात कर रहा है, उसको आवाज नहीं आई. अगर हम बोल रहे हैं और हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, बात आप तक पहुंची नहीं, बैरियर हो गया. अगर हम बोल रहे हैं और क्लियर भी बोल रहे हैं, तुम कहीं और तुम्हारा दिमाग है, बैरियर है. हम बोल रहे हैं, बहुत लाउड नॉइज आ रही है, बाहर से आ रही है, अंदर से आ रही है, कभी एसी की आवाज आ रही है, कभी पंखे की आवाज आ रही है, तो आवाज कट कट के आ रही है, टेक्निकल बैरियर. हम फोन से बात कर रहे हैं, फॉल्टी कनेक्शन है. जैसे आप कभी कभी क्या 99% बोलते हैं मैम कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम, बैरियर है. स्विच ऑन योर कैमरा, मैम कनेक्ट नेटवर्क प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम. कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आई तो लैंग्वेज प्रॉब्लम. कभी आपको एक्सेंट समझ में नहीं आया, व्हाट वर यू डूइंग, मैम क्या बोले समझ में नहीं आया, तो बोर्ड पर लिखते हैं अच्छा व्हाट वेर यू डूइंग. तो कभी कभी एक्सेंट समझ में नहीं आता आपको कि कैसे बोला जा रहा है, समझ में नहीं आता. कभी कभी कल्चर बैरियर होता है. क्या कल्चर बैरियर है? हाँ, कुछ हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं. जैसे चाइनीज के विश करने का तरीका दूसरा होता है, जापानीज के विश करने का तरीका दूसरा होता है. हम लोग में पाँव छूते हैं आराम से, अच्छे से, वो लोग ये क्या कर रहा है, ये लोग पागल वागल. बैरियर हो जाता है ना, कल्चरल बैरियर. तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत वास्ट चैप्टर है, कितने तरह के बैरियर्स हो सकते हैं. बेसिकली समझ लीजिए, नॉइज बैरियर है, टेक्निकल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, सेमांटिक बैरियर है. जैसे एक वर्ड, जैसे बैंक, मीट मी एट द बैंक. अब तुम समझ चले गए गंगा के किनारे मिलने के लिए और कहा जाता है मीट मी एट द बैंक. दिस इज सेमांटिक बैरियर, राइट. So these are the barriers of communication. अभी तो आप सेकेंड सेमेस्टर में, अभी कम्युनिकेशन बहुत वास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का, और हर क्लास में कुछ कुछ समझिए. जो किताब आपके मैनुअल में है वो तो है ही, आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है. जैसे हमने क्वेश्चन देखा एनालॉजीज का भी, दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए. एनालॉजीज का बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी आपको देना है. जैसे टू सी, टू आई इज टू सी, टू हियर इज टू हियर. ये क्या है? एनालॉजीज है. वो भी एडीयू के एग्जाम में आ चुका है. अभी यहाँ पे रहने दो, बहुत तरह का रिपोर्ट होता है, उसकी चैप्टर भी बाकी था. अभी तो मेरा चैप्टर जो लेके बैठे हुए थे आज, वो था राइटिंग स्टाइल्स में. बहुत जरूरी है जो एक्सपोजिटरी राइटिंग के कितने प्रोसेस, कितने तरह के राइटिंग एक्सपोजिटरी हैं, वो बताने वाले थे. लेकिन आपको चलिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है. तो एनालॉजीज आप समझते हैं ना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ कप इज टू ड्रिंक. कप इज टू ड्रिंक, आगे फिल इन द ब्लैंक करो. A cup is to drink. Pay. कप पीने के लिए होता है. कोई और चीज का नाम लो जो क्या करने के लिए होता है. नो. हाँ, कप इज टू ड्रिंक मतलब कि वर्ब लगाइएगा. कप, ड्रिंक. प्लेट. Yes. This is called analogies. आपके क्वेश्चन में दिखाई ना.
वही तो था। स्क्रॉल करिए। हाँ, paw is to cat, hoof is to hoof क्या होता है? वेरी बेसिक ये सब है, लेकिन फिर भी है। और स्क्रॉल करिए पीछे। Genuine means authentic. Marriage means, mirage means भ्रम, illusion. ये सब आप मैंने एक बार कहा था कि इसको इंक्लूड करना है सिलेबस में, बिकॉज बच्चों ने दिखाया था ये क्वेश्चन हमको। मैंने कहा था कि एनालॉजीज को इंक्लूड करना चाहिए कोर्स में। बर्ड इज टू फ्लाई, स्नेक इज टू, बच्चे ने सही लिखा। पैंट्री इज टू स्टोर, स्कलरीज इज टू किचन। नहीं किया है इसको, क्या है? किचन। पैंट्री में स्टोर किया जाता है बहुत चीजें। स्कलरी इज टू फर्स्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ स्कलरी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, टर्मिनोलॉजी देखिए और फिर आप खुद आंसर करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कलरी? कहां से कनेक्ट हो रहा है ये? किचन, स्कलरी, किचन। When you have a small kitchen at the back of the house, used for washing dishes. Blind, visual, deaf, sound. I think in Aryabhatta Knowledge University external business communications का हर चीज उठा के डाल देते हैं। एक प्लेट देते हैं आपको जिसमें सब चीज होता है। They are trying to test your communication skills. What are testimonials? What are its contents? You is a manager. अब ये बच्चे जब जो एक ही फोर्थ सेम में है, BBA एक BCA, बोले मैम व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इट वाज सो इजी। हु इज द मैनेजर? मैनेजर कौन है? मैनेजर जो मैनेज करता है। A manager, person who manages an office is called a manager. तो उसमें नहीं क्या लिखने वाला? नहीं, वो तो है, but we were not prepared. Okay, what are testimonials? What are its contents? अब तुमको हम बोलते हैं कि write a testimonial on Simage. Not passage. जैसे कोई छोड़ के जाता है, जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट, फीडबैक। टेस्टिमोनियल में क्या होना चाहिए? क्या हम 2 साल 3 साल यहाँ पर रहे और यहाँ पर कैसी पढ़ाई हुई, क्या नहीं हुई? दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। योर फीडबैक of the entire academic year. जैसे कोई एम्प्लॉय भी छोड़ के जाता है, तो कोई 10 साल काम करके कहीं और जा रहा है, तो जाने के पहले वो टेस्टिमोनियल दे के जाना चाहिए कायदे से। ठीक है कि I have worked in this organization, and I was very happy with the management. I had no problems here, and I have learned so much in this organization. For me, anybody who will be working at Simage will be in a better position. तो ये क्या हो गया? टेस्टिमोनियल फीडबैक हो गया कि हम जाने के पहले हम यहाँ का टेस्टिमोनियल, यहाँ का फीडबैक देके जाए। तो व्हाट आर टेस्टिमोनियल आप समझ गए? एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट? कंटेंट शुड बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेसिकली गुड एक्सपीरियंस।
Any other answers you have? उसमें क्या क्या लग रहता है कंटेंट में? तुमको कहा जा रहा है कि तुमको जब सेकंड सेमेस्टर में हो टेस्टिमोनियल लिखो, तो समझ का लिखो। हाँ, सबमिट करना होता है कि तुमने क्या क्या, तुमको क्या क्या अच्छा लगा, कैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या क्या यहाँ पढ़ाई हो रही है, किस तरह से तुमको फायदा हुआ। हाँ, सिमेज को क्या दिया और सिमेज से क्या किया? सिमेज को क्या दिए नहीं, सिमेज को तुम, सिमेज से तुमने क्या हासिल किया, क्या देकर क्या किया? क्या दे करके नहीं, मतलब व्हाट इज योर गेन। ये तो इसीलिए कह रहे हैं कि टारगेट इसी यही है आज। लायन शेयर पनिशमेंट का तुम्हें दे रहे थे। So if you attend the class, you will know so much, no? So the plus point of attending offline classes are numerous. So those who are coming offline, they are gaining much more than those who are online. Any more questions are there? Yes, ma'am. Status report करना है। हाँ क्या? India status report of height number. Height. यही बचा हुआ है। What is the report? I cannot see. Prepare a status report of a prospective customer to whom the company proposes to send goods in the near future. अब you are working in a company, ठीक है? Prepare a status report of your customer. किसी customer को तुम contact करने वाले हो, whom the company proposes to send goods in the near future. So I think you are working in a company and you are going to client building. Client building में तुम अपना company के status में क्या क्या चीज लिखोगे जो कि तुम्हारा वो client बन जाए। हाँ, हाँ, जो अपना goods वहां भेजने वाले हो near future में, तो अपने चीजों की लिस्ट बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, ताकि उसको पढ़ के आपका लेटर पढ़ के वो आपका क्लाइंट बन जाए और आपके गुड्स के लिए वो लोग ऑर्डर कर सके। हाँ, फॉर्मेट, बिजनेस लेटर, ब्लॉक स्टाइल, सारे फॉर्मेट आपके सेम रहेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एक समझा दिया, दैट विल बी फॉर ऑल। अगले बताएंगे, तो टाइम भी नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। Many kinds of reports, academic reports होता है, writing for newspaper, that is also a report. Appraisal reports हो सकता है, 360 reports हो सकता है, annual report हो सकता है, progress report हो सकता है। Different reports are done for different organization, for different reader. So in the next class we'll discuss the different types of report writing. All right then.